Pattern recognition is defined as identification of a complex pattern of sensory stimuli. बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन को बोला जाता है कि आइडेंटिफिकेशन है ये ऑफ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई. Recognition means identification of a pattern that is a complex arrangement of sensory stimuli. So pattern recognition is identification of complex arrangement of sensory stimuli. It is a cognitive process that matches information from a stimulus with information. So basically एक cognitive process है जिसमें matching है, right? So cognitive process that matches information from a stimulus, एक information जो stimulus से आ रही है with information that is retrieved from the memory, इन दोनों को मैच किया जाता है, वो cognitive process pattern recognition है. So it is a cognitive process that matches information from a stimulus with information retrieved from the memory. It involves a label to a particular arrangement of stimuli. Basically आप labeling कर रहे हैं, label दे रहे हैं particular arrangement of stimuli को. For example, you recognize letter Z and you are matching a basically particular set of stimuli with the label that is stored in your memory. आप जब एक लेटर भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टिमुलाई को एक लेबल को मैच कर रहे हैं उसके साथ जो आपके मेमोरी में स्टोर्ड है. इट अकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट इज रिसीव्ड एंड देन एंटर्स इनटू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो पैटर्न रिकॉग्निशन कब होती है? जब इंफॉर्मेशन आपके एनवायरनमेंट से आप रिसीव करते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर करती है एंड इट कॉजेज ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट और द सेंसरी स्टिमुलाई इज रिसीव्ड दैट एंटर्स टू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी causing an automatic activation of the specific content that is there in your long term memory. So it occurs when information from environment is received and enters into short term memory, causing automatic activation of specific content of the long term memory. Example, the teacher repeats ABC multiple times to a child and then the child says the alphabet C after hearing A and B. So जो मेथड यूज़ किया गया है पैटर्न रिकॉग्निशन में उसको आप मैचिंग बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन. पैटर्न रिकॉग्निशन को डिफाइन किया गया है एज द एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट एंड इंटीग्रेट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टिमुलस. ये एक एबिलिटी है, इसको डिफाइन किया गया है एक एबिलिटी के तौर पे टू अब्स्ट्रैक्ट एंड इंटीग्रेट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टिमुलस. एबिलिटी कि आप अब्स्ट्रैक्ट कर पाएँ या इंटीग्रेट कर पाएँ कुछ एलिमेंट्स को एक स्टिमुलस के. So ability to abstract and to integrate certain elements of a stimulus into an organized scheme. आप abstract integrate कर कुछ certain elements of a stimulus को आप integrate और abstract कर पा रहे हैं एक organized scheme के form में, into an organized scheme for memory storage and then you will retrieve it. So pattern recognition has been defined as the ability to abstract and integrate action elements of a stimulus, certain elements of a stimulus into an organized scheme for memory storage and retrieval. ये definition दी है सोल्सो ने. So according to Solso, pattern recognition has been defined as ability to abstract and integrate certain elements of stimulus into organized scheme for memory storage and retrieval. Page 2. Now we will discuss features of pattern recognition. 5 principles हैं pattern recognition के जो सोल्सो ने दिए हैं which are as follows. पहला है quickly and accurately. So pattern recognition is something that is very quick and accurately बहुत होता है ये process. So it is quick and accurate process. Recognition and classifying unfamiliar objects. So basically pattern recognition में you basically quickly and accurately आप recognize करते हो और classify भी करते हो unfamiliar objects को, right? Unfamiliar object भी है तो आप उसको classify करते हो.
recognize and classify unfamiliar objects. Accurately recognizes the shape and objects from different angle. पैटर्न रिकॉग्निशन में आप बहुत ही एक्यूरेटली शेप्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो इवन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. सो एक्यूरेटली recognizing shapes and objects from different angles, identifying patterns and objects even when they are partially hidden. पैटर्न ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना जब वो आधे ढके भी हों, पार्शली हिडन भी हों, तब भी आइडेंटिफाई कर पाना पैटर्न्स को, ऑब्जेक्ट्स को. एंड फिफ्थ इज रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न क्विकली विद ईज एंड विद ऑटोमेटिसिटी. सो बेसिकली आप पैटर्न्स को बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी, ईज के साथ, ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं. सो फर्स्ट वॉज क्विक एंड एक्यूरेट, सेकेंड वॉज रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासीफाइंग, इवन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को भी आप क्लासीफाई करते हो. थर्ड इज एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज द शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. बहुत ही सटीकता के साथ आप शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एंगल से भी रिकॉग्नाइज कर पाते हो. देन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ऑब्जेक्ट्स इवन व्हेन दे आर पार्शली हिडन. आधे ढके भी होंगे तब भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो पैटर्न्स को, ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स क्विकली विद ईज एंड ऑलमोस्ट विद ऑटोमेटिसिटी. तो पैटर्न्स को बहुत जल्दी, ईज के साथ, ऑटोमेटिसिटी के साथ आप रिकॉग्नाइज करते हो. हमने थियोरीज़ के बारे में पढ़ा था कि इसकी टेम्पलेट मैचिंग थियोरी है, प्रोटोटाइप मॉडल है और डिस्टिंक्टिव फीचर थ्योरी है, और फोर्थ वन इज़ कंप्यूटेशनल अप्रोच मॉडल. ये 4 थियोरीज़ हैं: टेम्पलेट मैचिंग, प्रोटोटाइप मॉडल, डिस्टिंक्टिव फीचर थ्योरी और कंप्यूटेशनल अप्रोच मॉडल. लेट्स टॉक अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जो हमारे क्वेश्चन का मेन टारगेट है. टॉप डाउन प्रोसेसिंग stresses how a person's concept and higher level processing influence pattern recognition. अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग इस बात पे स्ट्रेस करता है कि इंसान, एक व्यक्ति के जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है या जो हायर लेवल प्रोसेसिंग जो उसके ब्रेन में होती है, दैट इन्फ्लुएंसेस द पैटर्न रिकॉग्निशन. टॉप डाउन प्रोसेसिंग स्ट्रेसेस ऑन how person's concepts and higher level processing influences pattern recognition. So according to top-down processing, basically our knowledge about the world is organized and that helps in identifying the patterns. Basically हमारी जो knowledge है about the world वो काफ़ी organized है and हमें help करती है in identifying patterns. We expect certain shapes to be found in certain locations. We expect to encounter certain shapes because of our past experience. And these expectations help us to recognize patterns rapidly. Basically, हमारी knowledge about this world वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है और वो ही हमें मदद करती है पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए भी. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्टेन शेप्स जो हैं वो सर्टेन लोकेशंस में मिलेंगे हमें, है ना, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. और ये एक्सपेक्टेशन हमें हेल्प करती है पैटर्न को रैपिडली रिकॉग्नाइज कर पाने. सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज कंसेप्चुअली ड्रिवन प्रोसेसिंग. टॉप डाउन प्रोसेसिंग को कंसेप्चुअली ड्रिवन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं. जैसा हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है ना इसमें, तो कॉन्सेप्चुअली ड्रिवन प्रोसेसिंग है. और बॉटम अप प्रोसेसिंग इज़ एन एक्सप्लेनेशन फॉर परसेप्शन दैट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद एन इनकमिंग. अब इसी के विपरीत अगर हम बॉटम अप प्रोसेसिंग की बात करें तो इट्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर परसेप्शन दैट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद एन इनकमिंग स्टिमुलस एंड वर्किंग अपवर्ड्स अंटिल अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन आवर माइंड. बॉटम अप में आप ये परसेप्शन से शुरू होता है. एक्सप्लेनेशन फॉर परसेप्शन दैट इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विद एन इनकमिंग स्टिमुलस. स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है एक इनकमिंग स्टिमुलस से, एंड देन यू वर्क अपवर्ड्स अंटिल अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. जब तक कि एक ऑब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्म नहीं हो जाती हमारे माइंड्स में. सो इट्स ऑल्सो नोन एज अ स्मॉल चंक प्रोसेसिंग. इसी को स्मॉल चंक प्रोसेसिंग भी बोलते हैं. दिस प्रोसेस सजेस्ट दैट our perceptual experience is based entirely on the sensory stimuli that we piece together. ये प्रोसेस बॉटम अप प्रोसेसिंग बताती है कि जो हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो
सोलली बेस्ड है ऑन सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है, और उस सेंसरी स्टिमुलाई को हम एक साथ रखते हैं, टुगेदर पीस करते हैं यूजिंग ओनली डेटा दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम आवर सेंसेस। तो हम सिर्फ उसी डेटा पे रिलाई करते हैं जो हमारी सेंसेस से अवेलेबल है, ठीक है। सो बेसिकली परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, सेंसरी इंफॉर्मेशन ली और उसी के बेसिस पे उसे इंटायरली देखते हैं हम, पीस एक साथ पीस टुगेदर करते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग रेफर्स टू हाउ आवर ब्रेन मेक्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रॉट इनटू द ब्रेन बाय वन और मोर ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग बेसिकली रेफर करता है कि कैसे हमारे ब्रेन में हाउ आवर ब्रेन मेक्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है ना, दैट हैज़ ऑलरेडी बिन ब्रॉट अबाउट इन द ब्रेन बाय वन और मोर ऑफ द सेंसरी सिस्टम। एक या और एक से ज़्यादा सेंसरी सिस्टम्स द्वारा ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन लाई गई थी उसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। So top-down processing refers to how our brain makes use of information that has already been brought into the brain by one or more of the sensory systems. Object recognition combines bottom-up and top-down processing. दोनों object recognition के दौरान आप bottom-up और top-down दोनों processing का use करते हैं। Palmer notes it is impossible to believe only one or the other kind of processing. तो पाल्मर कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव कि एक ही काइंड ऑफ प्रोसेसिंग है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव ओनली ऑन वन और अदर काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग। सो एक डिस्टिंक्शन बताई है बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में। सो बॉटम अप प्रोसेसिंग emphasizes on stimulus characteristics, we have been talking about it, कि बॉटम अप में ज़्यादा फोकस एम्फोसाइज किया जाता है स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जबकि टॉप डाउन प्रोसेसिंग में एम्फोसिस होता है कॉन्सेप्ट्स पे, एक्सपेक्टेशन पे एंड जो मेमोरी स्टोर्ड है, कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेक्टेशन एंड मेमोरी स्टोर्ड पे।